Students, welcome back to my channel. Today we are going to continue the chapter with the last part of it, which is representation of various concentrations. So today we are talking about solutions. Solutions are basically consisting of a solute and a solvent part, and we are talking about homogeneous mixtures. So basically solute is completely soluble in a solvent. So concentration means the amount of solute that is being added to a solvent to make a solution. So concentration representation. And this can be represented in various ways. It can be represented in terms of mass. It can be represented in terms of volume and moles. So various units or various kinds of measurements will define how we are representing a concentration. So starting with the very small basic thing, which is mass. The first one is mass percent. This can also be written as m by m percent or w by w percent. Both can be used, or simply mass percent can be written. So mass percent means out of 100. Out of 100. So in mass, here mass we talk about in grams, or whatever unit you can take. Suppose we are taking a unit of mass as grams. So if I am saying a 50% by mass, it means the mass of solute is 50 gram if the mass of solution is 100 grams. So this is because we are talking in terms of percent. So 50% of the weight or 50% of the mass comes from the solute part. So 50% by mass अगर solute है तो इसका मतलब जो total है उसमें से 50%, ठीक है. So अगर ऐसे ही 69% by mass है HNO3 का सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन अगर 69% बाय मास है, इट मींस 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है और कंटेन्स 69 ग्राम ऑफ HNO3. So whatever is the percent, it is the percent, or you can say mass of solute upon mass of solution. And since we are talking about percent, I will multiply with 100. This is mass percent of solute. So, and also you can say the solution is basically due to solute and solvent. So, if you know the masses individually, you can add the masses to get the mass of solution. Or if you know the mass of solute, you can always calculate the mass of solvent by knowing the mass of solution. So solution is composed of solute and solvent. So this is how you represent percent mass. It is exactly same as how you calculate your percentage in any kind of subject. Suppose you are appearing for an exam which is having maximum marks of 100. So if you are securing 80 marks, you will say 80% I have secured, which is 80 upon 100 into 100. So अगर आपका 70 marks का exam है and if you are securing 35 marks out of 70, so 35 out of 70, और percent calculate करने के लिए we always multiply with 100. So 100 is basically because percent में represent करना है हमें. और अगर आप इसको देखेंगे तो this is coming up to be 0.5 into 100, which is 50%. Right? So exactly same as mass percent. Now mass percent को ही हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना, ppm यूनिट्स. दिस इज पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, जैसे मास परसेंटेज आउट ऑफ 100, पार्ट्स पर मिलियन मतलब आउट
ऑफ मिलियन होता है 10 टू पावर 6, ठीक है। तो कितना अमाउंट है 10 टू पावर 6 में से। तो इसमें भी अगर हम मुझे किसी भी मास को ppm में रिप्रेजेंट करना होगा, सो आई कैन से दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, यहां पर आता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, गलत हो गया, so parts per million means out of 10 to power 6 and mass percent was out of 100। तो इसमें 10 to power 6 में से कितना होगा रेशियो, और यहाँ 100 में से बताना था। तो क्या करेंगे, ppm में रिप्रेजेंट करने के लिए we will write mass of solute upon mass of solution into 10 to power 6। यहां पे परसेंट था तो 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां मिलियन है तो 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी गिवन मास को, अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास पता है, आप उसे ppm में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस केस में 10 टू पावर 6 यानी आउट ऑफ 1 मिलियन कितना है वो बताना है, अगर परसेंट है देन आउट ऑफ 100 बताना है, राइट। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन दिस परसेंट, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाय वॉल्यूम। अगेन हियर यू आर कंपेयरिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विद द सॉल्यूशन। सो परसेंट में वॉल्यूम ऑफ, अगर आप लिक्विड्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और परसेंट के लिए इंटू 100 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो विनेगर इज अ 5% बाय वॉल्यूम। सो इफ यू आर गिवन विनेगर इज 5% बाय वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो विनेगर है बाय 5% बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का यूनिट सपोज अगर आपने ml लिया है तो यानी 5 ml, और परसेंट की वजह से क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 5 ml इन 100 ml सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किस चीज का है, ये विनेगर है, और 5 ml किसका, एसिटिक एसिड का, क्योंकि वो सॉल्यूट है, एक लिक्विड सॉल्यूट है। तो यानी 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू मेक 100 ml सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन 100 ml है, सॉल्यूट 5 ml है, तो कितना पानी डाला होगा, यानी 95 ml वाटर डाला होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आपको इस स्टेटमेंट से ये समझ आ जाना चाहिए कि 5 ml को मैंने 100 ml टोटल सॉल्यूशन बना लिया, जिसके लिए मुझे 95 एक्स्ट्रा वाटर डालना पड़ा, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ परसेंटेज। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज आउट ऑफ 100, ppm इज नथिंग, इट इज जस्ट आउट ऑफ 1 मिलियन। तो इसलिए 100 की जगह हम 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वाज थर्ड। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से आपको समझ आता है कि कुछ पार्ट है, टोटल का कुछ पार्ट है, और किसका है, मोल। सो मोल है फ्रॉम टोटल, ठीक है। अगेन वी हैव अ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जो मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए A जो है मेरा सॉल्यूट है, B जो है मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो और A प्लस B मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन है ये। और इस सॉल्यूशन में जो अमाउंट है वो नंबर ऑफ मोल्स में पता है मुझे,
तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मैं Na लिख देती हूँ, सॉल्वेंट को Nb लिख देती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कितना मोल फ्रैक्शन A का टोटल में है, फ्रैक्शन का मतलब है इन टोटल, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंट होती है, एक सिंबल होता है काय, सबस्क्रिप्ट होगा A, अगर मैं A की बात कर रही हूं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्रेजेंटेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टोटल में क्या है, सॉल्यूशन में दो ही चीजें प्रेजेंट है, A और B, यानी A प्लस B के नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली मैं सॉल्वेंट की भी मोल फ्रैक्शंस निकाल सकती हूं अगर मुझे उसके मोल्स और टोटल मोल्स पता होंगे, राइट। तो आप देखेंगे हमेशा एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स की, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दो चीजें ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उनका जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनका एडिशन हमेशा 1 होगा। अगर सॉल्यूशन में तीन चीजें प्रेजेंट है तो तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड होके 1 होगा, जो कि इन दोनों इक्वेशंस की एडिशन से भी निकलता है, Na अपॉन टोटल मोल plus Nb upon total mole. So when you will add the two equations, you will always get 1. So mole fraction मतलब moles present है out of the total moles of the solution. ठीक है। Now the next term is मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ही कॉमनली यूज होती है प्रॉब्लम्स में, इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले जितने भी सॉल्यूशन बेस्ड चैप्टर्स हैं सभी में मोलैरिटी, जैसे आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, देयर यू विल सी अ लॉट ऑफ मोलैरिटी थिंग्स। सो मोलैरिटी का क्या मतलब है, मोलैरिटी से आ जाता है यहाँ पे मोल होगा कहीं ना कहीं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M, यहाँ पे साइ लिख देते हैं, कैपिटल M, और इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड इन लीटर्स, यानी लीटर में ही हमेशा होना चाहिए, और मोल्स की यूनिट क्या रहेगी, मोल। तो मोलारिटी की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है कॉन्सेंट्रेशन की, उसमें एज सच उसका यूनिट नहीं है, परसेंटेज है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज दिस इज मोल अपॉन मोल। इसकी यूनिट हम ppm लिखते हैं बिकॉज वी हैव टू टेल कि वी आर काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ 10⁶। तो हियर द यूनिट इज मोल्स पर लीटर। सो इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर्स, यू हैव टू कन्वर्ट टू लीटर्स। हाउ? सो 1 ml यू नो is equals to 10⁻³ लीटर्स। तो जितना भी ml दिया है उसको 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड 1 लीटर यू नो इज इक्वल्स टू 1 dm³। तो अगर आपको dm³ में दिया है तो वही लीटर भी है, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर³ भी है। सो जो भी आपको यूनिट दी है उसे आपको लीटर्स में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ml लिखेंगे तो इंटू 1000 करेंगे, बट मोलैरिटी की यूनिट हमेशा मोल्स पर लीटर ही होगी, इट कैन नॉट बी मोल पर ml, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज मोल पर लीटर। सो यहां पर जो याद रखने की चीजें हैं कि हाँ सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है। तो अभी तक हमने जितने भी रेशियोज पढ़े उसमें सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन ही पढ़ा है, कहीं पर भी सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट अलग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, if you want to make 1 molar NaOH solution, so it means molarity जो है वो 1 है, इसका मतलब number of moles of NaOH, क्योंकि यहां पर NaOH क्या है, it is a solute, और solution में क्या क्या प्रेजेंट है, volume of solution in liters, और number of moles हमें पता है कि क्या होता है, it is mass of NaOH upon molar mass of NaOH, m/m. Molar mass of NaOH is 40, which is known. तो 1 मोलर बनाने के लिए कितना मास चाहिए होगा, मैं इसको m ही लिख देती हूँ, ठीक है। और सॉल्यूशन वॉल्यूम सपोज 1 लीटर दी हुई है,
So I can write 1 molar is equals to m by 40. This is number of moles divided by 1 liter. So my m comes out to be 40 grams. तो मुझे 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करके पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर बनानी होगी ताकि मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन मिल जाए। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आती है विच इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है। सपोज आपने 1 लीटर NaOH बना लिया, ठीक है, और इसकी मोलारिटी है 1 मोलर। अब आपने इसमें से 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन ले लिया और उसमें पानी डाल दिया ताकि टोटल वॉल्यूम अब मुझे फिर से 1 लीटर मिल जाए, ठीक है। तो इसकी मोलारिटी को मैं क्या लिखूंगी, M1 विच इज 1 मोलर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाज 1 लीटर। मैंने क्या किया, M2 एक नया सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलारिटी तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि इसकी जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, 1 लीटर में से 100 ml लिया, यानी M1 1 मोलर था और मैंने इसका 100 ml ले लिया ये सॉल्यूशन बनाने के लिए। So now I am basically equating the amount or the number of moles of NaOH present in 100 ml, which is also present in the whole solution, right? So number of moles in 100 ml जो मैंने 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाया is equals to number of moles present in the final solution, which is solution number 2. Number of moles is molarity. Number of moles is molarity into volume. So मोलारिटी इंटू 100 ml जो मैंने लिया उसमें जितना भी अमाउंट NaOH को मैंने सेकेंड सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर का। सो दिस मोलारिटी वाज गिवन टू बी 1 मोलर। तो M2 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 मोलर इंटू 100 ml डिवाइडेड बाय 1 लीटर। अब 1 लीटर को ml से करेंगे डिवाइड, सो 1 लीटर को आई कैन राइट 1000 ml, 0.1 मोलर। यानी अगर मैं थोड़ा सा अमाउंट NaOH का ले लूंगी और उसको फिर से 1 लीटर सॉल्यूशन बनाऊंगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.1 मोलर हो जाएगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। तो हम कितने मोल्स ट्रांसफर हुए उससे इक्वेट करके ये रिलेशन पर पहुंचे हैं। तो दिस इज द मोलारिटी ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन, जहां से हमने 100 ml लिया जो हमारे पास सॉल्यूशन ओरिजिनली प्रेजेंट था। ये जो हमने वॉल्यूम उठाया उसमें से, जैसे कि 100 ml उठाया, तो यानी वॉल्यूम टेकन। ये फाइनल सॉल्यूशन बनाया हमने, उसकी मोलारिटी है, और ये फाइनल वॉल्यूम बनाया, ठीक है। सो डाइल्यूशन फैक्टर इज M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। नाउ as we can see in the mathematical relationship, the volume is coming in the denominator part of molarity. So this molarity, since the volume is a function of temperature, increase or decrease करने पे volume of the solution will change. So that's why molarity depends on temperature as well. तो इसीलिए एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस भी किया गया which is molality. इसकी यूनिट होती है मोलल, LAL। तो यहां पर वॉल्यूम का यूज ना करके हमने मोलालिटी को डिफाइन किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास से।
तो वॉल्यूम हैज बीन रिप्लेस्ड विद मास, बट यहां पर सॉल्यूशन था, यहां मास ऑफ सॉल्वेंट है और यूनिट हमेशा केजी रहेगी। ठीक है, अगर ग्राम्स में है तो यू हैव टू कन्वर्ट टू केजी बाय यूजिंग अ रिलेशन 1 kg इज इक्वल्स टू 10 to power 3 grams। ठीक है, तो यहां पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग कि डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो आप कितने ग्राम में कितना ग्राम डाल रहे हो, राइट? और एग्जैक्टली ऐसा ही रिलेशन हमने सबसे पहले पढ़ा था, विच इज मास परसेंट। तो अगर आपको मासेस पता है तो आप मास परसेंट निकाल सकते हैं, और आपको मास परसेंट पता है तो आप मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको मास परसेंट दिया है तो इट मीन्स आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, राइट? सॉल्यूशन और सॉल्यूट के मास से आप सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और वहां से मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, दोनों का रेशियो लेंगे तो मोलालिटी आ जाएगी, राइट? तो मास परसेंट कैन बी कन्वर्टेड टू मोलालिटी, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट मास परसेंट टू मोलारिटी यू नीड द वॉल्यूम। तो अगर उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, राइट, तो मास यू नो, mass of the solution you know. If you know the density of the solution, you can calculate the volume of the solution. ठीक है, let us see one example. Suppose you are given that a solution is 70% by mass and has density of 1.4 gram per ml. ठीक है, you have to calculate its molality and molarity, right? So how we'll do this? So 70% by mass means mass परसेंट जो है मुझे 70% दिया है, इसका मतलब है कि मेरा मास ऑफ सॉल्यूट जो है 70 ग्राम है। इफ आई अज्यूम दैट मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आउट ऑफ 100 है, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है, सो इफ माय सॉल्यूशन इज 100 ग्राम द सॉल्यूट इज 70 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ, 100 solution minus solute which is 30 grams. Now I know the masses. तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मोलालिटी is number of moles of solute upon mass of solvent in kgs. So its unit is going to be mole per kg. मोल्स निकालने के लिए हमें मास को मोलर मास से डिवाइड करना होता है। तो ऑफ कोर्स जो भी ये क्वांटिटी दी हुई है किसी सब्सटेंस की दी होगी, राइट? तो सपोज अगर NaOH की दी है, द कॉन्सेंट्रेशंस आर गिवन फॉर NaOH। वी नो द मास, मोलर मास ऑफ NaOH इज Na is 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, सो इट इज 40 grams per mole. So we can calculate, so moles of solute मतलब mass of solute upon molar mass, और डिवाइड करना है mass of solvent which is 30 grams। अब मैंने आपको बताया kg में होना चाहिए, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 to power 3 से, ताकि ये जो ग्राम है ये kg बन जाए अब, राइट? Because it is going to be 30 by 1000। और अगर आपको इस कंफ्यूजन होती है कभी भी ऐसे कन्वर्जन करने में, यू कैन सिंपली डू वन थिंग विच इज वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। जो भी यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है वो यहां लिख दीजिए ग्राम, ठीक है, और यहां वो लिख दीजिए
जो जिसमें कन्वर्ट करना है, और इन दोनों का रिलेशन क्या है, kg यहाँ है तो यहाँ पर 1000 होना चाहिए, because then this ratio is actually equals to 1. 1000 gram is equals to 1 kg, so the ratio is 1. So if you are multiplying anything with 1, it will remain the same. तो ऐसे करने से क्या होगा, आपकी यूनिट्स कट हो जाएंगे और फाइनल यूनिट भी आपको इजीली कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. सो मास इज गिवन for NaOH, which is a solute, as 70 grams divided by molar mass to 1000 divided by 30. So this is what you are getting, and if you calculate this, you will get molality of the solution. Now let us see how we calculate the molarity of the solution. So molarity के लिए आपको वॉल्यूम की जरूरत है, right? Volume of solution. So you have density of solution to be 1.4 gram per ml. You have mass of solution which is 100 grams. So density is mass per unit volume, or you can say volume is equals to mass over density. तो इसका मतलब मास है 100 ग्राम्स, डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर ml, तो हमारा 100 अपॉन 1.4 ml आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ आई नो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, आई नो द moles of solute. I can substitute to calculate molarity of the solution. So molarity is number of moles, which is 70 upon 40, to volume of the solution, which is 100 upon 1.4, and since this is in ml, I will multiply with 1000. And upon calculating this, I will get my molarity in terms of moles per liter. So this is how you can convert mass percent into ppm, mass percent to molality, and if the density is known, you can convert mass percent into molarity as well. Now there is one which is not very common, but still you need to know this, that is normality. Depends on the chemical equivalent. Chemical equivalent means the number of reactive species or chemically reactive species. It is represented as N. So suppose we are taking sulfuric acid and we are interested in its acid-base property. So for the acidic reactions or acid-base reactions, the interest is in the hydronium ions being produced from sulfuric acid. And if we are taking say 1 molar solution, so my number of reactive species are 2 from 1 of H2SO4. So N is going to be 2. And normality is related to molarity, where N is multiplied with molarity. So this solution is too normal with respect to H positive ions, and if my interest is in the sulfate ions, then one molecule is producing 1. So chemically reactive species here is 1 being produced. In case of this, normality is going to be 1 into 1 molar, which is 1 normal with respect to sulfate ions. So same solution will have 2 normalities depending on the reactive species. So this way you can do all the concentration representations. Thank you very much. Do subscribe my video.